Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Today I am going to discuss about some topics related to cell biology, which is included in its part 3. The first topic that I am going to discuss is filtration. तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन के बारे में, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. अनलाइक डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन इज सम हाउ डिफरेंट. कि इसमें क्या होता है कि ये जो फिल्ट्रेशन है, मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द परमिएबल मेम्ब्रेन, बट अनलाइक द डिफ्यूजन प्रोसेस इट इज़ प्रेशर ड्रिवन प्रोसेस. ये क्या है? प्रेशर ड्रिवन प्रोसेस है. इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बेस्ड ऑन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर है, सॉल्यूट्स और दीगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अक्रॉस मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. जहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हायर होगा वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर, टुवर्ड्स द एरिया वेयर द प्रेशर इज़ low. It is a non-selective process where particles are separated based on their size rather than the concentration gradient. तो इसमें concentration gradient की बात नहीं होती, बल्कि ये जो प्रोसेस है ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है. इसमें पार्टिकल्स साइज़ की बुनियाद पर ट्रांसफ़र होते हैं, ना कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की. तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये कहाँ होता है? इट अकर्स इन द renal function and capillary exchange. Carrier mediated transport. It is a type of transport that takes place through membrane proteins. membrane proteins वो होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर located होते हैं. So such as here you can see the blue one, it is a upper layer of the membrane and this one is the lower level of the membrane, and within them the membrane proteins are incorporated in. These are the yellow structures which are membrane proteins. So across these structures certain molecules or ions move across these channels, such as if we talk about sodium and potassium ions, they move across during the sodium potassium pump mechanism. So the sodiums move out of the cell through these channels and the potassium move into the cell. Now let's discuss about facilitated diffusion. It is a type of diffusion which is facilitated by certain proteins. So certain proteins help certain molecules to move across the membrane. So hence we can call it facilitated diffusion. It is a type of diffusion when the concentration of polar molecules like glucose become high on one side, in which the transport proteins are required to facilitate the movement of glucose. तो ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है पोलर मॉलिक्यूल्स का, जिसके लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करें. तो डेफिनेटली ग्लूकोज इज़ ऑफन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द facilitated diffusion. In the active transport, ATP is involved. You can see here the low concentration of ions outside the cell and the high concentration inside the cell. So in the active transport it is unlike diffusion somehow different. कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन तक मूव करते हैं. सो इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स दे कैन मूव अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम होगी ये वहाँ से मूव करते हैं और इनटू द concentration where it is high. ATP molecules is required before the ions are transported across the membrane. The ATP molecule contains 3-phosphate adenosine triphosphate, and after the action the ATP is converted into the ADP, which means adenosine diphosphate, because one phosphate molecule is removed. So what does it mean by active transport? Movement of molecules across a concentration gradient is known as active transport. They transport molecules from lower concentration to higher concentration. So this whole process requires ATP molecules. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए across the membrane. For that type of action, the proteins are categorized into 3 categories.
Which are those? The first one is unipolar. The unipolar is a category of carrier proteins. If carrier proteins transport same type of molecule or ions, such type of proteins are known as unipoters. यूनिपोटस ऐसे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक ही किस्म के मॉलिक्यूल या आयंस की मूवमेंट करवाते हैं और उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है. And sympoters, if carrier proteins transport two molecules or ions in same direction. तो sympoters में क्या होता है कि यहाँ पर दो molecules involve होते हैं या ions होते हैं, वो same direction पर move करते हैं. And then antipoters, anti means against. So the term itself tells us that the molecules move in opposite direction to each other, as we have already discussed about sodium potassium pump. तो इसमें क्या होता है कि if carrier proteins transport two molecules or ions in opposite direction, such as sodium potassium pump, so such type of carrier proteins are known as antipoters. The antipoters help maintain high concentration of potassium and low concentration of sodium ions inside nerve cells. So this sodium potassium pump is necessary for transmission of nerve impulses. So cell biology is a huge branch of biology. So there are some techniques used in cell biology to perform some research in labs. The first one is cell fractionation. The second one is differential staining, and then micro dissection. Number 4 is tissue culture, chromatography, electrophoresis, spectrophotometry, microscopy, and micrometry. These are some of the techniques used in cell biology. We are going to discuss all of these one by one. In cell fractionation, it is a technique used in cell biology used to break apart cells, organelles and other components based on their size and density. तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं और जो भी उनके कंपोनेंट्स होते हैं या इवन सेल्स एज ए होल, सो दे आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज़. तो उनकी साइज़ की बुनियाद पर और उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर उनकी सेपरेशन होती है. तो ये जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट ए सिंगल प्रोसेस, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स. तो इस प्रोसेस में मल्टीपल प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है होमोजेनाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन. होमोजेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ब्रेक इन ए कोल्ड सूटेबल मीडियम विद प्रॉपर पीएच एंड आयोनिक कंपोजिशन. तो जो भी सैंपल होता है, लेट सपोज के लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ब्रेक किए जाते हैं, और मीडियम कौन सा होता है, कोल्ड सूटेबल होता है, जिसके अंदर पीएच और आयोनिक कंपोजिशन वो प्रॉपर होती है वहाँ पर, ताकि ये जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं वो सेपरेट हों या उनकी ब्रेकडाउन हो इनटू कंपोनेंट्स. एंड देन सेडिमेंटेशन प्रोसेस फॉलोज. तो इसमें क्या होता है कि जो भी सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं या ऑर्गेनल्स होते हैं बॉटम पर सेटल डाउन होते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन से ऑर्गेनल्स वहाँ पर मौजूद हैं. ए प्रोसेस इन विच सेल ऑर्गेनल्स बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड मास आर सेटल डाउन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. तो उन मॉलिक्यूल्स को डेंसिटी या मास की बुनियाद पर सेटल डाउन किया जाता है. सो दिस होल सेडिमेंटेशन प्रोसेस रिक्वायर्स एक्शन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. तो एक चीज़ आप नोट कर लें कि द स्मॉलर द पार्टिकल्स, the more gravitational force will be required for the separation, such as through ultracentrifuge instrument. तो इसमें क्या होता है कि जितना पार्टिकल स्मॉलर होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत होगी, एंड फॉर देट टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उस हद तक अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करनी चाहिए होती है तो फिर क्या होता है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग की ज़रूरत होती है. इट कैन शो रोटेशन अप टू 60,000 साइकिल्स पर मिनट. इट मीन्स के पर सेकंड 1000 साइकिल्स ये परफॉर्म कर सकते हैं, एंड पर मिनट दे कैन परफॉर्म 60,000 साइकिल्स. तो शुरू में क्या होता है कि अगर लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, द लोअर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूग इज़ यूज्ड टू सेपरेट द हेवियर और बिगर ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये
बिगर होते हैं कंपेरेटिवली ऑर्गेनल्स दूसरे ऑर्गेनल्स से, तो उनके लिए लोअर स्पीड यूज़ की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, ताकि वो सेटल डाउन हो जाएं। एंड देन हायर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज्ड फॉर द स्मॉलर कंपोनेंट्स, और जो स्मॉलर कंपोनेंट्स बाद में रह जाते हैं जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं या दीगर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, तो उनके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ की जाती है। ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है इसमें आप एक चीज़ आप नोट कर लें, एक होता है सुपरनेटेंट और दूसरा होता है पेलेट। तो सुपरनेटेंट जो होता है ये बॉटम के ऊपर जो भी फ्लूइड मौजूद होता है, तो सुपरनेटेंट जो होता है ये अपर लेवल शोर करता है, और ये जो बॉटम होता है जहाँ पर सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो बॉटम पर आ जाते हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज द पेलेट। बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन द सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड, and after centrifugation you can find here the pellet, which is a darker region, and the lighter region that is known as the supernatant. Differential staining, a technique used in cell biology in which different dyes are used to distinguish between types of cell structures based on chemical and और फिज़िकल डिफरेंसेस। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डायस यूज़ किए जाते हैं बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर्स के वो सेल स्ट्रक्चर किस टाइप का है या उनकी केमिकल नेचर या फिज़िकल नेचर कौन सी है। इफ़ यू टॉक अबाउट WBC, जैसे कि फॉर सपोज WBCs की बात करें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBCs, सो फॉर ईच टाइप ऑफ WBCs डिफरेंट डाई इज़ यूज्ड एज दे आर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स। WBCs क्या हैं कि वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो दैट्स द रीज़न कि उनके लिए क्या यूज़ होता है, हम डाइस यूज़ कर सकते हैं ताकि उन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि वो किस टाइप का WBC है। डाइसेक्शन वर्ड आपने यूज़ किया होगा लेब्स में कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्लाइसिस प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन सैंपल से। तो माइक्रो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट certain type of sample which is very much similar as compared to the larger samples. So micro dissection, it means that a technique used in cell biology in which specific types of cells are isolated, separated for biological research. तो इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स या सेल्स की बात हो रही है कि हम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर सम neurons within the muscles, so how those neurons are separated from the muscle cells, definitely we will need a technique called microdissection for that purpose. Such as this technique is used to find out the role of embryonic cells in development, treatment of different diseases, and role of different chemicals in cell development. In this modern era, the most repeated phrase is tissue culture. It means it is a technique of cloning cells, tissues, or even organs grow in an artificial medium in a test tube or petri dish. तो चाहे वो फंजाई की बात हो, प्लांट्स या एनिमल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हो, तो उनकी आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि उनके सेल्स की प्रोडक्शन के लिए टिश्यूज़ या इवन उनके ऑर्गन्स को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने के लिए टिश्यू कल्चर की टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। सच एज दिस टेक्निक इज़ यूज टू ग्रो सम टिश्यूज़ और फॉर ट्रांसप्लांटेशन। Another similar phrase is cell culture. It is almost same as the tissue culture. So it is a process by which cells are grown under controlled conditions. So by controlled conditions it means कि एक suitable medium वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि सर्टेन सेल्स टिश्यूज़ जो हैं वो उसी मीडियम पर ग्रो हों, वहाँ पर उनकी नरिशमेंट होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियली ताकि वो सेल की जो है डिवीज़न हो और टिश्यू की प्रोडक्शन हो जनरली आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। और वो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पर उसे कंट्रोल किया जाता है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो टर्म है टिश्यू कल्चर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, मोंट्रोज थॉमस ब्रोस। दिस टेक्निक इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोप्रोपगेशन। Cell culture is one of the major tools used in cellular and molecular biology, providing excellent model systems for studying the normal physiology
and biochemistry of cells such as metabolic studies and aging। तो इन प्रोसेसेस के को समझने के लिए क्या होता है कि सेल कल्चर यूज़ किया जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स ऑन द सेल्स एंड म्यूटेजेनेसिस एंड कार्सिनोजेनेसिस। नंबर 5th technique is chromatography used in cell biology। So the word chromo, it means a color, and the graphy means images, to produce images। So it is a scientific way of separating mixtures into its individual parts। तो ये एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन टाइप इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो आम मिसाल है क्रोमेटोग्राफी का, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इफ़ वी लुक एट द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस टर्म, सो इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक, इट हैज़ ग्रीक रूट्स, दैट मीन्स कलर, and graphic, that means pictures or lines। Another fascinating technique is electrophoresis। It is a technique used to separate DNA, RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा टेक्निक है जिसमें DNA, RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। So this whole process involves the separation of charged molecules based on their size and electrical charge in a electrolytic cell। तो electrolytic cell, it's actually a certain type of medium जिसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूवमेंट करते हैं उनकी साइज़ की बुनियाद पर या इलेक्ट्रिकल चार्ज की बुनियाद पर। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन वो जेल इज़ यूज्ड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉमन जो मेथड है वो यूजुअली जो है उसमें हम जेल इस्तेमाल करते हैं। सो दैट टेक्निक इज़ नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द जेल इज़ मेड अप ऑफ एक्रिलेमाइड। तो ये एक केमिकल का बना होता है विच इज़ नोन एज एक्रिलेमाइड। द चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द जेल व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करेंट इज पास्ड अक्रॉस इट। सो ड्यूरिंग द मेथड क्या होता है कि एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट वहाँ पर पास किया जाता है और जेल के अक्रॉस। कंपोजिशन ऑफ जेल, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्रिलेमाइड दैट गिव्स राइज टू परमिएबल मैट्रिक्स लाइक सीव। तो ये एक छानी की तरह होती है, सीव की तरह होती है कि थ्रू दिस मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास्ड। इलेक्ट्रिकल करंट वहाँ पर जेल के अक्रॉस दिया जाता है तो फिर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और जो सॉल्यूशन होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होती है जहाँ पर जेल को ऐड किया जाता है। द जेल इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स सच एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है, इसमें दो एंड्स होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। तो एक चीज़ आप नोट कर लें बिफोर मूविंग फर्दर, इट इज़ टू नोट दैट द कैथोड एंड एनोड आर टू इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक बैटरी और सेल या सर्टेन टाइप ऑफ मीडियम। द एनोड इज़ वेयर ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपेंस, एंड द कैथोड is where the reduction, that means gain of electrons happens। Electrons always flow from the anode to the cathode। In electrophoresis, migration molecules can be found। The charged molecules which move are known as migration molecules। जो molecules charged होते हैं that show movement, so those type of molecules are known as migration molecules because they show migration as they migrate towards the opposite charge। जो पॉजिटिव चार्ज के एंड पर होंगे वो नेगेटिव चार्ज पर मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज पे होंगे वो पॉजिटिव साइड पर मूव करते हैं। सो दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। द नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इन सेम एज द पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। सो द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट मोर क्विकली देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स थ्रू द पोर्स ऑफ जेल। तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि जो जेल होती है वो क्या होती है, सीव लाइक होती है, छानी की तरह होती है। तो
तो वहाँ से क्या है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्विकली मूव करेंगे और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्लोअर और लो स्पीड पर मूव करेंगे। तो नतीजे के तौर पर क्या होगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड, तो हर एक मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट होगी। सो क्या होगा कि एक गैप पैदा होगी उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, तो which we can make estimation के those are different types of molecules which move at different speeds across the gel. So here polyacrylamide gel electrophoresis process is used, so which is a technique used to separate proteins or nucleic acids based on their size and charge. तो इसमें साइज़ और चार्ज की बुनियाद पर न्यूक्लिक एसिड्स और सर्टेन प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर पॉलीएक्रिलेमाइड इसलिए हम कहते हैं बिकॉज इट इज़ ए पॉलीमर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जेल। द सैंपल इज़ लोडेड इनटू ए जेल, तो सैंपल क्या होता है कि वहाँ पर ऐड किया जाता है जेल के ऊपर एंड एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ अप्लाइड, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है काजिंग द मॉलिक्यूल्स टू माइग्रेट थ्रू द जेल मैट्रिक्स। तो जेल जो सीव लाइक ट्यूब होती है तो वहाँ से मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा ही स्पीड्स पर मूव करेंगे एज कम्पेयर टू द लार्जर मॉलिक्यूल्स। द जेल इज़ देन स्टैंड टू विजुलाइज द सेपरेटेड बैंड्स, तो जो भी मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे तो फिर वो बैंड्स की फॉर्म में वहाँ पर नज़र आते हैं। जैसे कि हेयर यू कैन सी all of these are shown here in a micrograph, so they have different bends here. It is just because of their migratory speed across or in opposite direction to each other. Another interesting technique is spectrophotometry, an analytical and quantitative technique used in cell biology in which light absorption of chemical substances is absorbed by passing a beam of light through a sample. तो उसमें क्या होता है कि एक बीम ऑफ लाइट यूज़ की जाती है जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो होती है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, कि वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये हमें बताती है कि सब्सटेंस की जो मिकदार है वो वहाँ पर कितनी है। तो इसमें क्या है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इट इज़ एक्चुअली ए instrument used in the technique of spectrophotometry, an instrument used in spectrophotometry. It uses a beam of light which passes through the sample and then measures the absorbed wavelength of a substance, कि सब्सटेंस ने कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इस चीज़ को जो होता है क्या मेजर करता है ये इंस्ट्रूमेंट। Spectrophotometry is used to determine the growth of bacteria, rate of photosynthesis and minute quantity of बैक्टीरिया की ग्रोथ पर यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार पर है, या अगर हमें डीएनए की छोटी सी मिकदार को जानना होता है तो फिर वो भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए हम देख सकते हैं। सो हियर इज़ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कि सबसे पहले एक लाइट सोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कंसीडर यू कैन सी ए बल्ब which emits light and then it hits the collimator. कोलीमीटर क्या करता है कि ये लाइट को बेंड करता है टुवर्ड्स द प्रिज्म, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पर ये क्या करता है कि लाइट को बेंड करता है ताकि वो प्रिज्म के ऊपर ऐसे हिट हो। And then from the prism all the wavelengths of light are separated, such as there are 7 colors in a light. तो वो सारे जो 7 कलर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे आफ्टर मूविंग अक्रॉस द प्रिज्म। यू कैन फाइंड हेयर ऑल ऑफ दीज 7 कलर्स। ये क्या है कि 7 कलर्स हैं। सो दीज आर सेपरेटेड। पहले ये क्या थे कि ये मिक्सड एक लाइट की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद थे, जो कि यू कैन सी हेयर इन येलो, बट आफ्टर मूविंग अक्रॉस द प्रिज्म दोज कलर्स आर सेपरेटेड।
दो 7 कलर्स। तो सेलेक्टर क्या करता है कि उस 7 कलर्स में से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को कंसीडर करते हैं। जैसे कि सपोज द येलो वेवलेंथ इज़ यूज्ड फॉर सर्टेन सब्सटेंस, के ये जो येलो कलर की वेवलेंथ है वो सैंपल जो है आगे जो आएगा वो कितना सैंपल उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ येलो कलर इज अप्लाइड इनटू द sample, then the detector or camera will tell us the percentage of the absorbed light by the sample। तो अगर सैंपल ने 40% लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टर पर 60% लाइट पहुँच जाएगी। तो अगर 60% आएगी तो दैट मीन्स कि सैंपल ने कितना जो है लाइट को एब्जॉर्ब किया है, या ये जो येलो कलर की वेवलेंथ होगी तो कितना जो इसने एब्जॉर्ब किया है 40%। के इसमें सिलेक्टर का मकसद ये होता है कि स्पेसिफिक कलर को वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है एंड देन इट इज़ पास इनटू द सैंपल विच इज़ इंक्लूडेड इन द क्यूबिट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर गोइंग अक्रॉस दैट सैंपल जहाँ पर सब्सटेंस मौजूद होता है तो जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी उसकी बुनियाद पर ये उतनी परसेंटेज लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रिमाइंडर होगी लाइट की वो आगे जाकर जैसे कि यहाँ पर 60% लाइट वहाँ पर डिटेक्टर पर आ जाएगा। अगर डिटेक्टर पर 60% लाइट हिट करती है दैट मीन्स के 40% जो लाइट होगी वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द क्यूबिट। Another common technique is microscopy. So you have been learning this technique or studying this technique since your primary education. It is a technical field of using microscope to view objects too small to be seen with the naked eye. Attributes of microscope, इनके 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैग्नीफिकेशन, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करते हैं, और उसके बाद जो है रेजोल्यूशन होती है जिसमें इमेज को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, एंड देन कंट्रास्ट, सो इट प्रोवाइड द डार्कनेस ऑफ बैकग्राउंड रिलेटेड टू द स्पेसिमेन। So if we see the procedure of a microscope, we can magnify a specimen easily by as much as 10,000 times. The magnification power is calculated by multiplying the power of its eyepiece with the magnifying power of its objective. And the final technique which I am going to discuss is micrometry. So it studies the measurement of dimensions and size of objects under the microscope. तो ये भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए यूटिलाइज़ किया जाता है। फ़र्क क्या होता है कि इसमें मेजरमेंट होती है, जो भी सेलुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें मेजर किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोमीटर इज़ अटैच्ड टू माइक्रोस्कोप फॉर मेजरमेंट। तो इसके लिए माइक्रोमीटर की ज़रूरत होती है ताकि सर्टेन जो स्पेसिमेंस होती हैं उनकी हम साइज़ को मेजर करें। ये जो माइक्रोमीटर होते हैं इनके टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ओक्यूलर माइक्रोमीटर और दूसरा होता है स्टेज माइक्रोमीटर। ओक्यूलर माइक्रोमीटर ये प्लेस किया जाता है आई पीस के ऊपर, और जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है ये डेफिनेटली इस टेल्स अस के ये स्टेज पर ही, माइक्रोस्कोप के स्टेज पर ही प्लेस किया जाता है। द ओक्यूलर माइक्रोमीटर एक्ट्स एज ए यूनिटलेस स्केल एज इट हैज़ 100 इक्वल डिविजन्स विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता, बिकॉज इसके 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं। देयर इज अ रीज़न कि इसका कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता। सो इट इज़ ए यूनिटलेस स्केल। सो द ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज़ ए डिस्क मेड अप ऑफ ग्लास। तो ये एक डिस्क होता है जो कि एक शीशे का बना होता है। वेयर इज द स्टेज माइक्रोमीटर इज़ ए ग्लास स्लाइड विद प्रॉपर स्केल लाइक रूलर। ये एक रूलर की तरह होता है जिसमें एक प्रॉपर स्केल मौजूद होता है। द स्टेज माइक्रोमीटर इज़ यूज टू कैलिब्रेट द ओक्यूलर माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर एक्चुअली क्या करता है, कैलिब्रेट करता है ओक्यूलर माइक्रोमीटर को।
The stage micrometer is just like a tiny rule with the smallest divisions. So that's all about the part 3 of cell biology. Thank you so much.